Hello, class 4 students. Good afternoon. I I will discuss your second chapter of history and sixth chapter of your book, Our Heritage. It's question, answer, and exercise. Okay. Now this is your lesson starts from page number 58, and your first set of questions which you have to answer appears on page number 63. Page number 63. I think it is visible to you. Fill in the blanks. Let's practice. Fill in the blanks. First question. First fill up. Paintings and stories are a part of our dash heritage. You will find its answer in page number 59. Go to page number 59. Yes, you will find its answer here. Paintings, okay. Folk tales mean stories. And folk dances are examples of cultural heritage. So fill up with cultural. C-U-L-T-U-R-A-L. Cultural. Okay. Fill the blank with the word cultural. That is done on page number 59. Next, second. Bharatanatyam and Kuchipudi are examples of dash dance forms. Again, go to page number 60. You will find the answer. See here, page number 60. This is your page number 60. Page number 60. So here, Bharatanatyam and Kuchipudi. There are other dances also, are examples of classical dance forms. So fill the blank with classical, C-L-A-S-S-I-C-A-L, that you have found at page number 60. Next, third question. Thayam and Dandiya are examples of dash dance forms. You will find also on page number 60. Thayam and Dandiya. There are two dance forms, classical and other dance form is that I told you earlier also on page number 60. You see here, folk dances are performed on occasion. These dances are performed by a group of, this is called your Thayam and Dandiya Thayam. These are the examples of folk dance. So fill the blanks with folk, F-O-L-K. The fill in the blanks, fourth question. Dash is a folk song, sung to welcome spring. It is a folk song that is sung to welcome spring. And you know very well, Holi, our festival Holi comes in the spring season, and the song which is sung on that occasion is known as Hori. So the song Hori is sung on the occasion of Holi. So we will get the answer on page number 61. Here is 61. Hori is sung on Holi, welcoming the spring season. The answer is here Hori, H-O-R-I. Fifth and last of fill in the blanks. Our classical music is broadly divided into Hindustani and dash music. See here, you will find it that here also music. Go to music. So here you will find here. It is again on page number 61. Hindustani and Carnatic. There are two types of classic music. This is a types of classical music. One is Hindustani and other is Carnatic or Karnatak. So spelling, look here, C-A-R-N-A-T-I-C. Fill the blank with Carnatic. C is capital, C-A-R-N-A-T-I-C, because it is proper noun.
तो C should be capital. Starting letter C should be capital. Carnatic music. Next, come to match the columns. You have to match. The Veda, you know very well, this is our religious literature. So 1 and D. You have to match 1 and D. So the Vedas are the religious literature. Baul music, this is kind of music that is sung by the people who beg. This is known as beggars music. Those who beg for alms. भिखारी जो भीख मांगते हैं, वहाँ के लोग बाउल बजाते हैं, वो वेस्ट बंगाल का है. तो 2 और E को करिए मैच. 2 इज टू बी मैच विद E. बाउल म्यूजिक टू बी मैच विद वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट पंदावानी म्यूजिक. ये पंदावानी म्यूजिक कौन से इलाके में चलता है, कौन से स्टेट में चलता है? मैंने पढ़ाया था, छत्तीसगढ़ में चलता है पंदावनी म्यूजिक. तो पंदावनी, ये बी को मिलाइए, बी छत्तीसगढ़ है, ये 3 है, 3 और बी का मैच करिए. दिस योर पंदावनी म्यूजिक. डी है यहाँ पे कथकली. कथकली का आप पता अच्छी तरह, केरला का डांस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लासिकल फॉर्म ऑफ केरला, क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला. तो आप यहाँ करिए, आप सी को और 4 को मैच करिए, C एंड 4. और लास्ट है मधुबनी. तो आपको पता है एक पेंटिंग होती है, एक काइंड ऑफ पेंटिंग होती है, फॉक पेंटिंग बोलते हैं, मधुबनी पेंटिंग. इन सब का आप देख पा जाएंगे, इसका अंदर ही सबका आंसर आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट आप आइए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. व्हाट इज हेरिटेज? आपको फर्स्ट उसमें मिल जाएगा, पेज नंबर 59 पे. आपको शुरू में ही इसका आंसर, स्टार्टिंग में ही, जैसे ही आपका लेसन चालू होता है, स्टार्टिंग में ही दिया है, हेरिटेज के बारे में लिखा हुआ है. आप देखिए, द हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस विच ए कंट्री और सोसाइटी हैज़ हैड फॉर मैनी ईयर्स फॉर्म इट्स हेरिटेज. जो हमारे देश में काफ़ी साल से, किसी देश में परंपराएं और जो उसकी जो इतिहास जो चला आ रहा है, परंपरा सब बहुत पुराना जो चला आ रहा है और सदियों से चल रहा है, काफ़ी साल से, वही हमारी हेरिटेज बन के रहेगी. परंपरा और हमारे रिवाज, रीति रिवाज, हमारे मोनूमेंट्स, ये सब कुछ है. तो ये हमारा हेरिटेज है. इसको हम हिंदी में धरोहर भी कह सकते हैं. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर का. नेम द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज के कंपोनेंट्स क्या है? ये इसका छोटा सा आंसर पेज नंबर 59 में मिल जाएगा. देखिए, नेचर की जो चीज़ें वही नेचुरल हेरिटेज है. जैसे पहाड़ हो सकता है, पहाड़ को इंग्लिश में माउंटेन्स कहते हैं. माउंटेन्स, रिवर्स, नदियाँ, माउंटेन, रिवर्स, माउंटेन्स, रिवर्स एंड योर फॉरेस्ट, they are called they are the components of our natural heritage. You will get the answer on page number 59. See here, you will get the answer here. Our natural heritage includes natural features such as mountains, rivers and forests. पैराग्राफ का आखिरी लाइन है, आखिरी लाइन देखिए, नेचुरल हेरिटेज इंक्लूड्स नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, रिवर्स एंड फॉरेस्ट. तो भरा जाएगा माउंटेन, रिवर्स एंड फॉरेस्ट. इसमें ये आंसर आएगा. दे फॉर्म द कंपोनेंट्स, माउंटेन, रिवर्स एंड फॉरेस्ट फॉर्म द कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज. नेक्स्ट, यानी कि थर्ड क्वेश्चन, नेम 2 टाइप्स ऑफ रिलीजियस मोनूमेंट्स विच आर ए पार्ट ऑफ हेरिटेज. गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच. देखिए, हमारे हेरिटेज के जो रिलीजियस मोनूमेंट, जहाँ पे हम सैक्रेड मोनूमेंट्स होते हैं, मतलब जहाँ हम पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, उसको हम सैक्रेड मोनूमेंट भी कहते हैं, रिलीजियस मोनूमेंट भी कहते हैं. यादगार में जो बिल्डिंग बनाई जाती है, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया. तो एग्जाम्पल्स आपका इसमें 2 देने हैं. यहाँ टेम्पल्स हो सकता है, मॉस्क हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, इस तरह बहुत से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 2 दिए हैं, टेम्पल्स एंड मॉस्क. लेकिन इसका एग्जाम्पल आपका बुक में नहीं है.
तो कुछ एग्जाम्पल देना आपको, यू वॉन्ट गेट इन योर बुक। तो टेम्पल्स के एग्जाम्पल मैंने बताता हूँ आपको, देख लीजिए। मीनाक्षी टेम्पल एक है, बहुत ही अच्छा टेम्पल है, बहुत सुंदर है, साउथ में बहुत पुराना टेम्पल है। मदुरई बोल के की जगह है तमिलनाडु में, मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है। वो हमारा एक नेचुरल एक रिलीजियस मोनूमेंट, हमारा एक रिलीजियस हेरिटेज है, जिसका नाम है आपका मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई। नेक्स्ट एक हमारा मॉस्क है, मैंने 2 एग्जांपल दिए, टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। तो मॉस्क का एग्जांपल है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद आपका कहाँ है, आप सब जानते हैं, दिल्ली में है। पुरानी दिल्ली में रेलवे स्टेशन से थोड़ा पास में ही है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, दैट इज नोन एज जामा मस्जिद। एक बहुत पुरानी एक रिलीजियस मोनूमेंट है, दैट इज नोन एज जामा मस्जिद। मस्जिद मीन्स मॉस्क। तो आपको इसका आंसर टेम्पल मॉस्क आपको इसी में मिल जाएगा। आपको देखिए पीछे आपको मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा इसी पेज में 59 में। देयर आर सैक्रेड, आपको पता है सैक्रेड मतलब रिलीजियस, पवित्र, धार्मिक मोनूमेंट्स लाइक टेम्पल्स मॉस्क। ये आपको मिल जाएगा गुरुद्वारा, चर्चेज, ठीक है, चैत्या जो कि बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल्स वगैरह ये मिल जाएगा। लेकिन आपका वो एग्जाम्पल्स तो आपको मैंने दे दिए, ये आपको नहीं मिलेगा, मीनाक्षी टेम्पल और जामा मस्जिद का। ओके, अब आइए, व्हाट इज अ फॉक डांस, गिव 2 एग्जाम्पल। लोकगीत, हिंदी में फॉक डांस को बोलते हैं लोकगीत, ठीक है, नहीं सॉरी, लोक नृत्य बोलते हैं। लोकगीत होता है फॉक म्यूजिक और फॉक डांस होता है आपका लोक नृत्य, मतलब जो डांस होता है फॉक डांस। 2 एग्जाम्पल देंगे फॉक डांस के, तो ये आपको पेज नंबर 60 में मिलेगा आपका। जो आपका बच्चा होने पर, शादी ब्याह में जो लोग बाग करते हैं उसको फॉक डांस बोलते हैं। त्योहार कोई मनाते हैं, होली है, होरी है, उस टाइम जो डांस करते हैं। जब कटाई होती है तो आपका इन योर पंजाब वी पीपल परफॉर्म भंगड़ा एंड गिद्धा, दे आर पार्ट ऑफ फॉक डांस। छऊ, बहुत सा आपको मिल जाएगा फॉक डांस के एग्जाम्पल आपको, ये आपके फॉक डांस में आते हैं, लोक नृत्य है सारे। तो आप देखिए यहाँ पर पेज नंबर 60 मिलेगा, पेज नंबर 60, ये आपको फॉक डांस यहाँ मिलेगा, देख रहे हैं आप। छऊ है, दांडिया है, थैया में ये सारे, चकियार, कुथू, ये सब फॉक डांस के एग्जाम्पल। लेकिन कब हुआ, जब क्वेश्चन ये, फॉक डांसर परफॉर्म ऑन ओकेजन लाइक बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, जो हमारे यहाँ भी करते हैं, कुआ पूजन होता है तो इस टाइम बर्थ ऑफ चाइल्ड का फॉक डांस परफॉर्म करते हैं। वेडिंग, शादी के टाइम, फेस्टिवल्स, कोई त्यौहार मनाते हैं तब, या हार्वेस्ट कटिंग होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल पे जो डांस करते हैं, जैसे आपको बताया ना अभी भंगड़ा, गिद्धा, ये सब फॉक डांस के, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉक डांसेस। नाउ भंगड़ा, गिद्धा और डांडिया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं, डांडिया, थैया, ठीक है, सिंगी, ये आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉक डांस। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, दिस इज योर पेज नंबर 64, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। Why do we say that our literature is a treasure house of forms and forms an important feature of our culture heritage? हमें ये क्यों कहते हैं कि हमारा जो लिटरेचर है, हमारा जो साहित्य है, जहाँ सब लिखा जाता है, जहाँ पर बहुत पोइट्री है, लिखी गई है, रिटन रिकॉर्ड है, पोइट्री है और बहुत कुछ लिखा गया है, वो हमारा ट्रेजर हाउस है, एक खजाना है हमारे देश का, हेरिटेज का, और हमारा वो बहुत बड़ा एक कल्चर हेरिटेज का पार्ट है, क्योंकि हम बहुत पुरानी बातें जान सकते हैं काफ़ी डिटेल्स में। इट हैज़ बीन डिस्कस डिटेल्स इन दोज लिटरेरी वर्क, उनमें लिटरेचर में उन, चाहे आपका रामायण के बारे में मालूम पड़ जाता है, बहुत बड़ा काव्य है, यू कैन पोइट्री है, लॉन्ग आपका एक बहुत बड़ा पोइट्री है, ये काव्य आप जानते हैं, रामायण और आपका महाभारत है, ये सब लिटरेचर भी है। तो एक खजाना है हमारा और बहुत चीज़ों को डील करता है। आप इसका पेज नंबर 61 में मिलेगा, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, पेज नंबर 61 में आ जाइए। आइए लिटरेचर, यहाँ बिल्कुल लास्ट मिलेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 1 का यहाँ देख रखे हैं। आवर लिटरेचर इज ए ट्रेजर हाउस, खजाना है, कंटेनिंग इंफॉर्मेशन और रिलीजन। एक तो रिलीजन के बारे में मिलेगा जो आपको पता है,
रामायण, महाभारत, गीता। वाइल्ड लाइफ, यहाँ के वाइल्ड लाइफ पे बहुत किताबें लिखी गई है, जंगल के ऊपर, हमारे जो फॉरेस्ट के ऊपर बहुत है। पीपल, यहाँ लोगों के ऊपर अलग अलग प्रदेश में लोग, मेडिसिन, जो आपके मेडिसिन के ऊपर बहुत बुक्स है, हर्ब्स के बारे में, जड़ी बूटी के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी आपके उसके ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है ना, स्पेस साइंस के ऊपर मिल जाएगा आपको, और आपको अलग अलग टॉपिक के पूरा खजाना मिल जाएगा आपका। सबसे बड़ा रिटन रिकॉर्ड लिटरेचर है। ये बुक्स फॉर्म में हो सकता है, आपका पोएट्री फॉर्म में हो सकता है, रिटन रिकॉर्ड है, नॉवल फॉर्म है, तो काफ़ी कुछ मिला जाएगा। तो इसलिए इसको खजाना है पूरा, कोई अंत नहीं है इसका, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा हमारा हेरिटेज है ये लिटरेचर, कल्चर हेरिटेज सबसे बड़ा है। नेक्स्ट आपका देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिटन रिकॉर्ड एंड ओरल ट्रेडिशंस विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। एक तो रिटन रिकॉर्ड होता है जो लिखा जाता है, जो बताया लिटरेचर है, और दूसरा ओरल जो मुंह जबानी चलता है, जैसे कहानियाँ हैं, फॉक टेल्स मतलब जो बहुत सालों पहले चल रही है, जिनको लिखा हुआ नहीं है। कुछ कथाएं होती है जो दादी अम्मा सुनाती है अपने बच्चों को, फिर वो दादी बन जाती है, वो अपने पोतों को सुनाती है, लाइक दिस। ये आगे से नीचे तक परकोलेट कर जाती है। तो ये बहुत कब से हो रही है पता नहीं, ये सब ओरल ट्रेडिशन है। तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 61 और 62 में इसका आंसर मिलेगा। पेज नंबर 61, 62 जोड़ के है। यहाँ ये लास्ट जो यहाँ पे आइए, द नॉलेज और स्टोरीज विच हैव बीन पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू वर्ड ऑफ माउथ फॉर्म ओरल ट्रेडिशन। जो मुंह जबानी चलता रहता है उसको ओरल ट्रेडिशन कहते हैं, लेकिन इससे पहले और दिया हुआ है। देखिए वो आप जो लिटरेचर का वो भी है, वी हैव बोथ ओरल एंड रिटन रिकॉर्ड। तो रिटन रिकॉर्ड में ये आता है, आवर लिटरेचर इज ए ट्रेजर ऑफ हाउस, ये भी रिटन रिकॉर्ड है। जो भी रिटन रिकॉर्ड है, जो लेखा जोखा, रिकॉर्ड में लेखा जोखा है, जो लिखा हुआ जो है पूरा रिकॉर्ड जो हम लिखा जोखा है, वो आपका जो लिखा हुआ है आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा, वो एक होता है, वो लिटरेचर में आता है। और दूसरा ओरल लिटरेचर है, जो कि हम हैव बीन पास फ्रॉम वन जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ओरल ट्रेडिशन चला जाता है, परकोलेट हो जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, द पीपल ऑफ फ्रांस स्पीक फ्रेंच एंड द पीपल ऑफ जर्मनी स्पीक जर्मन, कैन यू से दैट इंडियन स्पीक इंडियन, गिव ए रीजन। देखिए सही बात है, इंडियंस बोल कोई लैंग्वेज ही नहीं है, क्योंकि इंडियन में 22 लैंग्वेज है जो कि मान्यता दे रखी है, बोलियाँ तो बहुत है। इसका आंसर ये होगा नो, देयर इज नो लैंग्वेज लाइक इंडियन। पीपल हियर इन इंडिया, पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेज, दो हिंदी इज द spoken by most of the people, but still Hindi is not spoken by all the people of India. So no language is there called Indian. We people are Indian, but our language is not Indian. Our language there are 22 languages which is these two languages they are recognized by our constitution. These languages you can see here languages. There are 22 languages recognized by the Constitution of India. Besides, there are 33 official languages, a number of dialects and tribal languages. So there is no language called Indian. तो आंसर इसका ये होगा। Next, fourth, people in different parts of India wear different traditional clothes. Is there any connection between climate and the types of dresses which people wear? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। देखिए क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जब हमारा क्लाइमेट अलग अलग हो जाता है, जैसे किसी जगह आपका ठंडा क्लाइमेट होगा तो वहाँ के द पीपल देयर विल वियर लाइट ड्रेसेस, और जहाँ थोड़ा आपका पीपल ऑफ देयर वियर, जहाँ ठंडा प्रदेश होगा वहाँ पे आपको वुलन ड्रेसेस, और आपका डल ड्रेसेस, ब्लैक ड्रेसेस पहनेंगे, डार्क कलर के ड्रेसेस पहने, ये आप कह सकते हैं। और जहाँ आपका कम होगा, जहाँ पर आपकी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो और विंटर काल में आप देखेंगे गर्म ड्रेसेस पहनेंगे, और बाकी समय हम लोग क्या करेंगे, ब्राइट ड्रेसेस पहनेंगे।
जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ ब्राइट ड्रेसेस, तो कलर वगैरह और सब पीपल का अलग अलग हिसाब किताब है। क्लाइमेट के हिसाब का लोगों का परिधान चेंज हो जाता है। दे वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। आप देखिए अगर जम्मू कश्मीर के लोग, वहाँ ठंड पड़ती है, अलग किस्म के ड्रेसेस पहनेंगे, साउथ के लोग अलग किस्म के ड्रेसेस पहनेंगे। तो लैंग्वेज, ये आपका क्लाइमेट प्लेज ए great part in deciding the dresses of people wear. The dresses which people wear is greatly decided by the climate of that place. तो आज मैंने डिस्कस कर लिया है, तो ये आप लिखिए अपने नोटबुक में और इसको आप अपना करिए. Now I am finishing my discussion on the topic and finishing my question answer. Okay, have a nice day. Okay.